ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি মহাশয় কিন্তু রানাঘাটের যে ওএনজিসি মাঠ, সেখানে যে হেলিপ্যাড, সেখানে কিন্তু ল্যান্ড করছে। একেবারে সামনে থেকে দেখাচ্ছি। ममता के गुंडों को मैं आज कहकर जाता हूँ, कान खोल कर सुन लो। 29 तारीख को घर के बाहर कदम भी रखा तो 5 तारीख को उल्टा लटका कर सीधा। নমস্কার বন্ধুরা, এই মুহূর্তে আমি উপস্থিত রয়েছি রানাঘাট দক্ষিণ বিধানসভার অন্তর্গত ওএনজিসির মাঠে। তার কারণ আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এখানে এসে উপস্থিত হবে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি মহাশয়। আজকে 26শে এপ্রিল, আর দুদিন বাদেই 29শে এপ্রিল রয়েছে বিধানসভার দ্বিতীয় দফার ভোট। আর এবারের ভোট আমি আগেও বলেছি, এবারের ভোটে যখন আমরা দ্বিতীয় দফায় যখন বোতাম প্রেস করতে যাবো ইভিএম মেশিনে, কয়েকটা কথা আমাদের মাথায় রাখা উচিত। এবারের ভোট নারী সম্মান রক্ষার লড়াই। এবারের ভোট যারা পরিযায়ী শ্রমিক রয়েছে তাদেরকে নিজের রাজ্যে ফিরিয়ে এনে তাদের মায়ের কোলে ফিরিয়ে দেওয়ার লড়াই। এবারের ভোট শিক্ষা রক্ষার লড়াই, যেখানে 15 বছর ধরে একটার পর একটা যে সরকারি নিয়োগ, যখনই নিয়োগ হোক না কেন তারপরেই আমরা কি দেখি, বিজ্ঞপ্তি বেরোলো, পরীক্ষা দিল, পরীক্ষার্থী তারপরে কেস হয়ে যায়। 26,000 শিক্ষক শিক্ষিকার চাকরি চলে গেল, যার মধ্যে অনেকে যোগ্য প্রার্থীও ছিল। রাজ্য সরকার চাইলে যোগ্য আর অযোগ্যের লিস্ট কিন্তু আমাদেরকে সবার সামনে দিতে পারতো, এতে করে অনেক যোগ্য প্রার্থী তাদেরও চাকরি মানে বেঁচে যেত। সব মিলিয়ে এবারের ভোট আমাদের রাজ্যটাকে পাল্টানোর লড়াই। আপনারা সবাই 29শে এপ্রিল যখন ভোট দেবেন, একবার ভেবেচিন্তে ভোট দেবেন। আমরা 34 বছর বামফ্রন্টকে দিয়ে দেখলাম, 15 বছর আমরা কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস, 25 বছর আমরা কংগ্রেসকে দিয়েও দেখেছি। একবার না হয় আমরা বিজেপিকে দিয়েই দেখি না 5টা বছর। তারপরে যদি রাজ্যের পরিবর্তন না হয়, তখন তো আমরা সকলে মিলে আবার যখন নেক্সট বিধানসভার ভোট হবে, সেখানে আবার ইভিএম মেশিনে বোতাম প্রেস করে পাল্টে দিতেই পারবো। কিন্তু তার আগে আমাদের একবার অন্তত সুযোগ তো দিতে হবে, দেখতে তো হবে রাজ্যের পরিস্থিতি বদলায় কিনা। সকলে ভেবেচিন্তে ভোট দেবেন। আমি এখন যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি এটাই কিন্তু হেলিপ্যাড। এখানেই কিন্তু মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের যে হেলিকপ্টার, সেটা কিন্তু ল্যান্ড করবে। দেখাচ্ছে, এই হচ্ছে পুরো জায়গাটা। চলুন বেশি কথা না বলে মূল যে ভিডিও সেটা তাহলে শুরু করি। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। দেখতে পাচ্ছেন একবারে ভিডিওর মধ্যে সরাসরি ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি মহাশয় কিন্তু রানাঘাটের যে ওএনজিসি মাঠ, সেখানে যে হেলিপ্যাড, সেখানে কিন্তু ল্যান্ড করছে। একেবারে সামনে থেকে দেখাচ্ছি। একসাথে সকলে বলুন জয় শ্রীরাম। আজকে 26শে এপ্রিল, দুদিন বাদে রাজ্যে বিধানসভা দ্বিতীয় দফার ভোট, সেই উপলক্ষে কিন্তু রানাঘাটে আসা। দেখুন ধুলো, দেখুন এই ধুলোর সাথেই কি পরিবর্তনের যে ডাক বা পরিবর্তন, সেটাই কি বোঝাচ্ছে, সেটাই এখন দেখার। এই ধুলোর মতো যেমনভাবে উঠছে, সেমনভাবেই কি তৃণমূল রাজ্য থেকে বিদায় নেবে, সেটাই দেখার। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কিন্তু ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। সামনের যে গাড়িটা, সেই গাড়িটায় উঠেই কিন্তু যে সভামঞ্চ, সেই সভামঞ্চের দিকে এগিয়ে যাবে। সরাসরি পায়ে হেঁটেই কিন্তু একবারে সভামঞ্চের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সামনে কিন্তু গাড়ি কিন্তু রাখা ছিল যাওয়ার জন্য, সেই গাড়িকে উপেক্ষা করে একবারে সরাসরি পায়ে হেঁটে একবারে যে সভামঞ্চ সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছে। দেখুন একেবারে সরাসরি
সভামঞ্চের ভেতরে ঢুকে গেল। আর এখানে হচ্ছে পাবলিককে একবার দেখায়, যারা দেখার জন্য বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। माता की अरे ममता दीदी, मोदी जी ने राम मंदिर बनाया और ममता दीदी इसके चट्टे पट्टे हुमायूं कबीर से बंगाल की भूमि पर बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं। ममता दीदी कान खोलकर सुन लो, जब तक एक भी भाजपा का कार्यकर्ता जिंदा है, बंगाल की भूमि पर हम बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। नहीं। प्रथम चरण में क्या होगा बता दूं क्या? तो मेरी बात सुनिए, प्रथम चरण में ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ होगा। 151 में से 110 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत, और अब बाकी का काम दूसरे चरण वालों ने करना है। बाकी का काम दूसरे चरण वालों ने करना है। मुझे बताओ, राणाघाट दक्षिण और राणाघाट उत्तर सीटों को कमल के निशान में दे देंगे क्या? अरे जोर से बोलो, दे देंगे। भाई बैठ जाओ, सभी लोग कुछ नहीं हुआ है, बैठ जाओ जरा, बैठ जाइए अपने अपने स्थान पर। बिठाने की जगह आप भी बैठ जाओ भाई, सभी लोग बिठाना बंद करो, बैठ जाओ। मेरे साथ बोलो, भारत माता की। भाई ये ढोलक कौन बजा रहा है? बंद करो जरा, ये ढोलक कौन बजा रहा है? पीछे ढोलक बज रहा है, बंद करो जरा। भाइयों बहनों, 4 मई को भाजपा सरकार बनने वाली है। इतने सारे दीदी लोग बैठे हैं, मेरी बात सुनकर रखना। मई महीने के बाद बंगाल के हर दीदी माता बहन के अकाउंट में हर महीना 3000 रुपया भाजपा सरकार भेजने वाली है। और युवाओं को भी, सारे बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में हर महीना 3000 रुपया भेजा जाएगा। 3000। सारी माताओं बहनों को सरकारी बस में कोई टिकट नहीं लेना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका मुसाफरी होगा, मुफ्त मुसाफरी हो जाएगा। ग्रेजुएशन करने वाली बच्ची को, बालिका को 50,000 रुपया आगे की पढ़ाई के लिए हम देंगे। बेरोजगार युवा जो इंडस्ट्री डालना चाहते हैं, उनको 15 लाख रुपए का लोन देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, ममता बनर्जी ने पूरे बंगाल को घुसपैठियों से भर कर रखा। मुझे बताओ, घुसपैठिया मुक्त बंगाल बनाना है या नहीं बनाना है? भैया बीच में लोग खड़े, बैठ जाए जरा, बैठ जाओ तुम भाई। ये भगवान जब्बे वाले खबा बोलते हुए भाई साहब बैठ जाइए, अब बैठ जाइए, नीचे बैठ जाओ।
षड्यंत्र करके कुछ मतुआ भाई बहनों का, नाम सूत्र भाई बहनों का नाम मतदाता सूची से कटवाया। आज मैं यहाँ पर कहकर जाता हूँ, 5 तारीख को सरकार बना दो, एक एक मतवा भाई बहन का नाम, सूत्र भाई बहन का नाम वापिस लगाने का काम भारतीय पार्टी करेगी। ये ममता के गुंडे हमेशा परेशान करते हैं या नहीं करते हैं? जोर से बोलो, करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं ना? चिंता मत करो, अब नहीं करेंगे। ममता के गुंडों को मैं आज कहकर जाता हूं, कान खोल कर सुन लो। 29 तारीख को घर के बाहर कदम भी रखा तो 5 तारीख को उल्टा लटका कर सीधा चुनाव आयोग ने पुख्ता व्यवस्था की है। हर बूथ पर सीएपीएफ उपलब्ध है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। पहले चरण में ममता का एक भी गुंडा बाहर नहीं आया। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये सिंडिकेट बंद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आम लोगों को भाईपो टैक्स से बहुत परेशानी। ईट खरीदेंगे, भतीजा टैक्स लगेगा, सीमेंट खरीदेंगे, भाईपो टैक्स लगेगा, बल्ब खरीदोगे, भाईपो टैक्स लगेगा। अब 4 तारीख से सिंडिकेट समाप्त, भाईपो टैक्स भी समाप्त। भाइयों बहनों, हमारी चूनी नदी में प्रदूषण इतना बढ़ा है कि अंदर मछली ही समाप्त। हम चूनी नदी को शुद्ध कर पहले जैसी निर्मल बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। 550 साल से पहले मुगल, फिर अंग्रेज, फिर कांग्रेस, फिर ममता राम मंदिर रोक कर बैठे थे। 19 में आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने राम मंदिर बनाकर जय श्री राम। मैं कहता हूं, गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा करेंगे। ममता दीदी मेरा विरोध करे। अरे ममता दीदी क्या चाहती है? गुंडों को क्या गले लगाए? बंगाल की जनता को बम धमाकों से त्रस्त करने वाले गुंडे, आजीकर, संदेशखाली, कलकत्ता लॉ कॉलेज, दुर्गापुर लॉ कॉलेज, माताओं बहनों पर अत्याचार करने वाले गुंडे। आपको पसंद आए तो आपके घर बिठाकर आलू पोस्ता खिलाओ, हम तो जेल में डालेंगे, जेल। अरे ममता दीदी निर्लज्ज होकर कहती है 7 बजे के बाद माताएं बहनें घर के बाहर नहीं। ममता दीदी शर्म करो, शर्म करो। महिला मुख्यमंत्री होकर माताओं बहनों की सुरक्षा करने की जगह घर से बाहर निकलने की ना बोल रही है। दीदी लोग
कहकर जाता हूं, राणाघाट उत्तर दक्षिण दोनों जिता दो। 5 तारीख के बाद रात को 2 बजे भी छोटी सी 25 स्कूटी लेकर निकलेगी, कौन दूंगा उसको छूट। पूरे देश भर में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर हमने कर दिखाया। भाइयों बहनों, यहाँ किसानों को धान के दाम नहीं मिलते हैं। हमने तय किया है कि धान को 3100 रुपया देकर सारे किसानों से बंगाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार खरीद करेगी। इतने सारे युवा बैठे हैं, मुझे बताओ भाई, कुछ लोग 4 साल करते हैं ना, ट्रिपल तलाक समाप्त हो जाए। भाइयों बहनों, हम सारे सरकारी कर्मचारियों का पुलिस समेत 7वें वेतन आयोग का फायदा और डीए 45 दिन में हम देने का काम करेंगे। सभी गरीबों का 5 लाख तक का ऑपरेशन समेत इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, मुफ्त में होगा। तो 7,000 उद्योग बंगाल के बाहर चले गए हैं। एक नई औद्योगिक नीति बनाकर उनको सहायता कर इस 7,000 उद्योगों को हम वापिस पुनर्जीवित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, हर साल 1 लाख नौकरियां, युवाओं जोर से ताली बजाना, 1 लाख सरकारी नौकरियां रिश्वत दिए बगैर युवाओं को 75 लाख लखपति दीदी बनाएंगे। एक नया एम्स, बंगाल में दूसरा एम्स, दूसरा आईआईएम और दूसरा आईटीआई बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी, आईआईटी बनाने। भाइयों बहनों, ममता बनर्जी ने पूरे बंगाल में विकास करने की जगह 15 साल में गुंडा राज स्थापित किया। उनका एकमात्र उद्देश्य भाइयों को मुख्यमंत्री को। ममता दीदी, मेरी बात कान खोलकर सुन लो, आपके जीवन में आप भाइयों को मुख्यमंत्री नहीं। भाइयों बहनों, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस और कवि गुरु टैगोर का बंगाल आज जीर्ण शीर्ण कर दो। हमने तय किया है कि महापुरुषों की कल्पना का सोनार बांग्ला बनाने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी करेगी। कानून का राज, इंफ्रास्ट्रक्चर, गांव में शुद्ध पानी, प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा हर गरीब को, हर माँ को गैस, हर बच्ची को पढ़ाई, ये पूरा वादा नरेंद्र मोदी जी का वादा है। मुझे बताओ राणाघाट वालों, इतनी विशाल संख्या में आए हो, दोनों सीटें जिताओगे क्या? जोर से बोलो, जिताओगे? भाई देखो, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। ये 15-20 हजार लोगों से दोनों सीटें जीत जाएगी क्या? ना, ज्यादा वोट चाहिए। तो क्या करोगे बताओ? देखो, मैं एक
आइडिया बताता हूं, करोगे क्या? जरा हाथ ऊपर उठाकर करो, करोगे? जिन जिनके पास मोबाइल है, अपने सगे संबंधी, पिता माता, भाई भाभी, काका काकी, बुआ फूफा, सबको फोन करना है और सबको कहना है कि कमल के निशान पर बटन दबाना है। कमल के डिफेंडर में मैदान में खड़ा हुआ हर मतदाता 25-25 लोगों को फोन करेगा। क्या बताओ भाई, करोगे क्या? जोर से बोलो, करोगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? घुसपैठिया मुक्त बंगाल बनाओगे? गुंडा मुक्त बंगाल बनाओगे? महिलाओं को सुरक्षित करने का काम करोगे? मोदी जी का हाथ मजबूत करोगे? मालूम है ना दीदी लोग कौन चार शादी करता है? मालूम है नहीं है? ईश्वर मालूम है क्या? ये चालू रख सकते हैं क्या? जोर से बोलो, रख सकते हैं? हम 5 तारीख को सरकार करने के बाद यूसीसी लाएंगे और बंगाल में 4 शादियां बंद हो जाएंगी। साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी खींचकर बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। और एक बार सभी लोग हरि बोल बोलेंगे, मेरे साथ बोले, हरि बोल।